الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام أطعموا الطعام صلوا صلاة بالليل والناس نيام يدخل الجنة بالسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وجيب الدعوة تثبت العاطف أو كما قال عليه الصلاة والسلام دولت دنیا نہ لے تو دولت اسلام لے دولت دنیا نہ لے تو دولت اسلام لے دین و علم و فضل کی گرتی عمارت تھام لے بات کہہ رہا ہوں موقع اگر تو مان لے بات کہہ رہا ہوں موقع اگر تو مان لے ایسا مومن بن کے دکھلا دے پوری دنیا تجھ کو جان لے ذرے ذرے سے نمایاں عظمت اسلام ہے ذرے ذرے سے نمایاں عظمت اسلام ہے ہر طرف اونچا زمانے میں خدا کا نام ہے دین کی خاطر جئیں گے دین پر مر جائیں گے دین کی خاطر جئیں گے دین پر مر جائیں گے بس یہی آغاز ہے اپنا یہی انجام ہے بڑھتی ہی جاتی ہیں جس مکار کی مکاریاں بڑھتی ہی جاتی ہیں جس مکار کی مکاریاں جس سے نفرت ہے جہاں کو جو بہت بدنام ہے اہل مغرب دشمنی اسلام سے کرتے رہے اہل مغرب دشمنی اسلام سے کرتے رہے اس لیے ان کے دلوں پر ہے بت اسلام ہے میرے بھائیوں اس وقت میں مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے کیونکہ جلسے میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ 10 ساڑھے 10 بجے جلسہ پورا ہو جانا چاہیے تاکہ ہم لوگ فجر کی نماز باجماعت پڑھ سکیں بہرحال پرسوں بھی میں آپ کے گاؤں میں آیا تھا جامع مسجد کے برابر میں اجلاس تھا حضرت مولانا امام صاحب اور مفتی صاحب اور بھی ہمارے امام صاحب جو بھی یہاں پر یہ ترانہ پیش کر رہے تھے بہرحال یہ سبھی لوگ وہاں پر موجود تھے بڑا شاندار اجلاس ہوا اور آج مولانا عمران صاحب کے پچھلے سال کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جلسہ موقوف ہو گیا تھا بہرحال آج پھر حاضر ہوا اس سے پہلے بھی کئی جلسوں میں یہاں پر آیا ہوں اور قاری عمران صاحب اس مدرسے کے محتمم ہیں ناظم ہیں اس کے روح رواں ہیں بڑی اچھی محنت کوشش جدوجہد یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے میں نے قرآن کریم کے قائد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے 2 فرمان پیش کیے ہیں دعا فرمائے کہ اللہ مجھ کو صحیح کہنے اور آپ حضرات کو سن کے ان باتوں کو عمل میں لانے کی توفیق عنایت فرمائے میرے بھائیوں اصل چیز عمل ہے شاعر نے کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اصل چیز عمل ہے عمل کی نیت سے آپ نے ایک بات بھی سن لی آپ کہیں سے بھی تشریف لائے آپ کا آنا انشاءاللہ میرے بھائیوں کامیاب ہو جائے گا آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا اگر ایک بات پر بھی عمل کر لیا پوری رات جلسہ ہو عمل نہ کیا تو سب بیکار ہے میں نے پہلی جو حدیث پڑھی ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے اندر جنت کے داخلے کا وعدہ فرمایا اور یہ بچے بھی خاموش ہو جائیں فرمایا افشوا السلام سلام کو عام کرو سلام کو رواج دو جب آپ اس میں ملو تو سب سے پہلے سلام کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہنے کرو صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے تاکہ ان کے اندر سلام کی عادت پڑ جائے یہ بھی سلام کرنے والے بن جائیں ایک صحابی سے مسجد میں ملاقات ہوئی بیچ میں کوئی کھمبا کوئی بیم کوئی ستون وغیرہ ہلا گیا اللہ کے نبی نے اس کے بعد پھر سلام کیا سلام
कितनी बड़ी चीज है। आज एक इंसान सलाम करते समझता है कि मैं छोटा बन जाऊंगा, वो बड़ा बन जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं, बड़ा हालांकि वही जो सलाम कर रहा है। आपने कहा सलाम अलैकुम, आपको 10 नेकियां मिल गई। आपने कहा वरहमतुल्लाहि, आपको 20 नेकियां मिल गई। आपने कहा व बरकातुहू, आपको 30 नेकियां मिल गई। आज हम इमाम साहब को सलाम करने के लिए तैयार नहीं, बच्चों को सलाम करने के लिए तैयार नहीं, अपनी बीवी को सलाम करने के लिए तैयार नहीं, घर में घुसे जब सलाम करने के लिए तैयार नहीं। सलाम करना चाहिए, सलाम में पहल करनी चाहिए। सलाम बहुत बड़ी चीज है। तो फरमाया अफसुस सलाम, सलाम को आम करो, सलाम को रिवाज दो, जब आपस में मिलो तो सबसे पहले सलाम करो। आगे फरमाया भूखों को, मसाकीनों को, गरीबों को, मुसाफिरों को, मेहमानों को खाना खिलाओ। ये बहुत बड़ी बात है। इस्लाम जो फैला है वो अखलाक से फैला है, न कि तलवार से। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर हमारा मौका पानी का है पानी पिला दो, हमारा मौका चाय का है चाय पिला दो, हमारा मौका खाना खिलाने का खाना खिला दो। कम से कम कोई मेहमान आ जाए तो बिठा दो, लोग तशरीफ रखें, बैठ जाए। तो मेरे मोहतरम फरमाया भूखों को, मसाकीनों को, गरीबों को, मुसाफिरों को, मेहमानों को खाना खिलाओ। क्योंकि इस्लाम जो फैला है वो अखलाक से फैला है। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से मालूम किया कि अल्लाह के नबी, इंसान की सबसे अच्छी चीज कौन सी है? कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अखलाक इंसान की सबसे अच्छी चीज कौन सी है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अखलाक इंसान की सबसे अच्छी चीज कौन सी है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अखलाक। तीनों मर्तबा यही जवाब दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वाक़े से पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंगल के अंदर तशरीफ फरमा है। एक यहूदी से लेन देन का मामला पेश आ गया। उस यहूदी ने कहा कि अल्लाह के नबी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपने घर चला जाऊं, रुपये पैसे अशरफिया लेकर आ जाऊं। अल्लाह के नबी ने इजाजत दी। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में वो जंगल में पहुंचा। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराकर क्या फरमाया कि भाई तुमने मुझे हिम्मत दी, यानी तुमने मुझे तकलीफ दी। अल्लाह के नबी के कितने ऊंचे अखलाक थे। तो क्या फरमाया, उसमें सूरज चंद रोजा उसने सीरत मुस्तकीम, उससे खुश होती है हमें, इससे खुश होता है दिल। इंसान की सीरत और अखलाक, ये तमाम चीजें अच्छी होने चाहिए। आज मेरे भाई हम मुसलमान अखलाक से गिरता जा रहा है, वरना ये हालात हमारे सामने आने वाले नहीं थे जो हालात हम अब देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। तो फरमाया भूखों को, मसाकीनों को, गरीबों को, मुसाफिरों को, मेहमानों को खाना खिलाओ। आगे फरमाया सल्लु सलातम बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रात के वक्त में नमाज पढ़ो। मेरे भाइयों, इससे मुराद तहज्जुद की नमाज। कोई भी किताब, कोई भी लोग, कोई भी वली इस नमाज के बगैर नहीं बना है, नहीं किसी किताब के अंदर लिखा है। और शायर ने कहा है, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, मजानी हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहर का ही। जब तक बंदे के दिल से सुबह के वक्त में एक आवाज न निकले, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। आईने जहां मरता कोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेर को आती नहीं रोपाही। जो अल्लाह के शेर हैं उनको लोमड़ी वाली चाल नहीं आती। हम तो थक गए, हम तो सफर में थे, हमें तो नींद आ गई। एक तायर, एक छोटे से परिंदे का नाम है, एक तायर लाहौटी, उस रिज़्क़ से बहुत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में करता ही, उस खाने से तो बहुत अच्छी जिसको खाकर हम नमाज न पढ़ सके, रोजा न रख सके, ज़कात न दे सके, हज अदा न कर सके, उससे तो बहुत अच्छी। तो आगे फरमाया ये दुखुल जन्नत बिस्सलाम, जिस इंसान के अंदर ये 3 सिफतें होंगी, ये 3 बातें होंगी। कौन कौन से मेरे भाइयों? सलाम करने की, खाना खिलाने की, तहज्जुद की नमाज पढ़ने की, हम उसको सही व सालिम जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। जो हज़रात परेशानी में मुब्तला हैं, मक़रूज़ हैं, उन पर मुक़द्दिमात हैं, मेरे भाइयों सुबह सवेरा उठे, 2-4 रकात पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे। कौन सी दुआ है वो जो असर नहीं रखती? हाँ, मगर ये लाजिम है, मांगे करीने से। तू बताता है कि देने के लिए दर तेरी रहमत के हरदम है खुले। हम तो मांगने वाले नहीं, और शेख ज़करिया के बकौल कि तू ही अगर न चाहे तो बातें 1000 हैं, न करने वाले के तो 1000 बातें हैं, और करने वाले के लिए वक्त मिल जाता है। मैंने दूसरी हदीस जो पढ़ी है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान के ऊपर 5 हुकूक बयान फरमाए। रद्दुस सलाम, जब कोई आपको सलाम करे उसके सलाम का जवाब देना। आज अव्वलन तो हम सलाम ही नहीं करते, कोई अगर हमें सलाम करता है तो उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं। मसलन हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाहर से कोई आपको सलाम करे, अगर एक शख्स भी दे दे तो भी काफी हो जाता है, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन बड़े हैरत की बात है, आज हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं कि सलाम के अल्फाज भी सही मायने में याद नहीं।
माना और मतलब और तर्जुमे की बहुत दूर की बात है, उनके इसके सलाम के अल्फाज भी सही तरीके से याद नहीं। कोई कहता अस्सलाम वालेकुम, कोई कहता अस्सलाम वालेकुम, कोई एक हाथ से, कोई कुछ न सलाम लेने का तरीका आता है न सलाम करने का तरीका आता है। इन उलमा के पास हमें बैठकर सीखना चाहिए। और बिना कुछ क्या करते हैं, सलाम मारा छाती पर हाथ रख लिया, ये मकरूह है। एक जगह लिखा है बिदअत है, बिदअत गुमराही है, और गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली चीज है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने को पढ़े लिखे भी कहते हैं कि सलाम करा छाती पर हाथ रख लिए, इससे हमें बचना चाहिए। तो यहाँ पर फरमाया रद्दुस सलाम, जब कोई आपको सलाम करे उसके सलाम का जवाब हो। और या कि तुम मरीज की मिजाज कुर्सी उसकी इयादत के लिए जाना, ये भी अल्लाह के नबी से साबित है। अल्लाह के नबी किसी वली की इयादत के लिए नहीं, किसी नबी की इयादत के लिए नहीं, किसी कुतुब गौस अब्दाल की इयादत के लिए नहीं, बल्कि एक मौके पर एक यहूदी की इयादत के लिए तशरीफ ले गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में एक यहूदी रहता था, नौजवान लड़का था। अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होता रहता था। इत्तिफाक से जिस वक्त नौजवान बीमार हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर पाते ही उसके घर पर तशरीफ ले गए। आपने जाकर के देखा कि वो नौजवान मरने की हालत में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उस नौजवान को कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने की तलकीन फरमाई। उस नौजवान ने इजाजत की गर्ज से अपने वालिद मोहतरम की तरफ देखा। वालिद ने इजाजत दी कि बेटा कलमा पढ़ो। उसने फौरन कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसका फौरन इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसको नहलाया, खुद इसको कफन पहनाया, खुद उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाई। जब जनाजे को लेकर कब्रिस्तान में पहुंचे तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम क्या देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रहे हैं, एड़ियां पीछे से उठा रखी है। सहाबा ने मालूम किया, ए हुजूर इस तरह चलने की वजह क्या है? आपने फरमाया कि इस नौजवान को कांधा देने के लिए आसमान से इस कदर फरिश्ते आ रहे हैं कि जिनकी वजह से मैं पूरा पैर अपना जमीन पर नहीं रख सकता। फिर सहाबा ने मालूम किया, ए हुजूर इतने फरिश्तों के आने की वजह क्या है? तो आपने फरमाया कि इस नौजवान ने मरते वक्त सिर्फ एक मर्तबा इखलास के साथ कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया था। इसलिए आसमान से इस कदर फरिश्ते आ रहे हैं कि जिनकी वजह से मैं पूरा पैर अपना जमीन पर नहीं रख सकता। आप ही बताएं उन लोगों का क्या होगा जो पूरे इस कलमे का हित रखते हैं, जो पूरे इस कलमे को पढ़ते हैं। तो फरमाया भैया तुम मरीज की मिजाज कुर्सी उसकी इयादत के लिए जाना। आगे फरमाया वही जनाजे के साथ जाना। कलाम पाक में अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, अपने अपने वक्त पर सबको जानना है। अल्लाह ने दुनिया पानी के अंदर कमोबेश 18,000 मखलूक को पैदा फरमाया। 3 मखसूस मखलूक हैं, नूरी, नारी, फाकी, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते। इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा फरमाया, जिन्नात को अल्लाह ने आग से पैदा फरमाया, फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से पैदा फरमाया। इसमें जमीन के, इस दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा करने का इरादा फरमाया तो खबर के तौर पर, मशवरे के तौर पर फरिश्तों के सामने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं दुनिया के ऊपर, मैं जमीन के ऊपर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, तुम सब की क्या राय है? तो सारे फरिश्तों ने एक लफ्ज़ एक ज़बान में फरमाया अतजालु फीहा मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, कि अल्लाह ताला ऐसी मखलूक पैदा करना चाहते हैं जो आपस में लड़ाई झगड़े फसादात खूनी करेगी। अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलम मा ला तालमून, मैं तुमसे ज्यादा इल्म रखता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। तो जब इंसान अच्छे काम करता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, हज अदा करता है, दीनी मजलिसों में बैठता है, दीन के कामों के लिए चलत फिरत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको देखकर बेइंतहा खुश होते हैं। और हमारा जिक्र यहाँ नहीं बल्कि आसमानों के ऊपर ऐसी वैसी मखलूक के सामने नहीं बल्कि मलाइका जैसे नूरानी मखलूक के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत हम जैसे बदबख्तों अहलों का जिक्र करते हैं और यूं कहते हैं कि देखो ये वही आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है जिसके बारे में आप सबने फरमाया था कि आप ऐसी मखलूक पैदा करना चाहते हैं जो आपस में लड़ाई झगड़े
फसादात पूरी करेगी। उस वक्त मैंने कहा था इन्नी आलम माला तालबून, मैं तुमसे ज्यादा इल्म रखता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आप 43 साल तक जन्नत में रहे, 957 साल दुनिया में रहे। जिस जमीन की दुनिया के सबसे पहले इंसान हमें याद रखना चाहिए। 43 साल तक जन्नत में और 957 साल दुनिया में रहे। कलाम पाक में तकरीबन 25 मकामात पर आपका जिक्र आया है। आप जन्नत में सोए हुए हैं, आपकी बाईं पसली निकाल दी गई, वहां पर एक गोश्त का टुकड़ा रख दिया गया। आप नींद से बेदार हुए, आपने देखा आपके सरहाने एक औरत बेटी मुस्कुरा रही है। आपने फरमाया तुम कौन हो, किस लिए पैदा की गई हो? मैं हव्वा हूं, तुम्हारे सुकून के लिए पैदा की गई हूं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये 3 मखसूस मखलूक हैं, नूरी, नारी, खाकी, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, अपने अपने वक्त पर सबको जाना है। अव्वलन तो आज हम जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, जनाजा पढ़ लिया तो कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं, कब्रिस्तान चले गए तो मिट्टी डालने के लिए तैयार नहीं, मिट्टी डाल दी तो वहां कुछ पढ़ने के लिए तैयार नहीं, मोबाइल से फुर्सत नहीं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें चाहिए कि हमें भी एक दिन दुनिया से जाना है। और वो तो वो सादतमंदी की बात है, खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है, जिसको कफन, दफन, जनाजे की नमाज, ये तमाम चीजें मिल जाए। अभी कोरोना वायरस जो चला, इसमें हमने देखा बड़े अजीज और बड़े मालदार जिन लोगों को मुंह पर पट्टी लगा दी गई, गड्ढे खोद दिए गए, और मेरे भाइयों न उनको कफन मिला न दफन मिला। इसी तरह से हॉस्पिटल में पन्नी में बंद होकर आए और बड़े गेड़े गड्ढे में मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों उनको ऐसी दबा दिया। बताइए, ऐसे ऐसे लोग हमने अपने आंखों से देखे। इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम जनाजे के साथ जाएं, इत्तिबाउ जनाइज, जनाजे के साथ जाना, उजीब दावत का कबूल करने सुन्नत है। इसलिए मेरे भाइयों, एक है तकवा, एक है मसला। अगर कोई गैर मुस्लिम भी दावत करे तो मसला इजाजत देता है और तकवा इनकार करता है। तकवा किसको कहते हैं? एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से मालूम किया कि अल्लाह के नबी तकवा क्या चीज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कभी आप हजरात खारदार झाड़ियों में को यानी कांटोदार झाड़ियों से गुजरे हो? कभी आप हजरात खारदार झाड़ी में को निकले हो? कहा कि कई मर्तबा। तो किस तरीके से कि अपना दामन समेट कर, पल्ला लपेट कर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसी तरीके से गुनाहों से बचने का नाम तकवा है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आगे फरमाया वो इत्तिबाउ जनाजे के साथ जाना और तस्मीतुल हादिस ठीक का जवाब या रहमतुल्लाह कहकर देना। इन चीजों का मैं ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह के नबी ने एक मुसलमान के ऊपर 5 हुकूक बयान फरमाए। लेकिन मेरे भाइयों, आज आप बुरा मत मानना, आज दीन का जनाजा हमारे घरों से निकल रहा है। नमाज हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं, रोजा हम रखने के लिए तैयार नहीं, उलमाए किराम से अपना ताल्लुक कायम करने के लिए हम तैयार नहीं, बुजुर्गान दीन के पास जाने के लिए तैयार नहीं। और न जाने क्या क्या लोग कह देते हैं कि खाने कमाने के बना रखे हैं। हज़रत थानी से कुछ लोगों ने, हजरात ने मालूम किया कि हजरत अगर हमने इन लोगों को चंदा न दिया, हमने इन लोगों को पैसा न दिया, तो ये उलमा कैसे अपना पेट भरेंगे, कैसे काम करेंगे? अल्लाह के क्या फरमाया हजरत थानवी ने कि तुम लोग इनकी फिक्र ना करो, इनके पेट तो भर जाएंगे, तुम आने वाली नस्लों की फिक्र करो, इन बच्चों का क्या होगा। आज 1 साल मदरसा बंद हुए होंगे, कितने बच्चे हमारे कहीं भट्टों पे, कहीं जंगल में, कहीं कहीं न जाने कहां कहां हमारे बच्चे चले गए। अमीरों के बच्चे तो पढ़ गए कहीं मोबाइल के जरिए किसी की तरह से। लेकिन मेरे भाइयों, खास तौर से हमारे गरीब तबका, ये छोटे बच्चे जो मदरसों में न जा सके, स्कूलों में न जा सके, बहुत बड़ा भारी नुकसान है। मुबारकबाद देता हूँ कारी मोहम्मद इमरान साहब को, इन हालात में इतना बड़ा इजलास मुनाकिद करना और यहाँ बच्चों को तालीम देना। मुझे पता चला कि यहाँ हमदबारी और बुखारी शरीफ तक तालीम हो रही है। बच्चों का जो यहाँ पर निजाम है वो बुखारी शरीफ तक है, माशाअल्लाह, शुरू से लेकर आखिर तक। बहुत अच्छी बात है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आपकी बस्ती में बुखारी शरीफ हो रही है, जो सब कलाम पाक के बाद सबसे बड़ी किताब है, वो यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। इसी के साथ साथ 2 बच्चे मदरसे में हाफिज हुए, 9-10 मदरसीन काम कर रहे हैं और हमेशा इन्हें बड़े काम की फिक्र रहती है। कभी कभी इनसे वहाँ पर मुजफ्फरनगर में मुलाकात होते परहेज के ऊपर, तो हमेशा जल्दी में रहते हैं और यहाँ के कागजात और यहाँ का निजाम, तस्दीक नामे, यहाँ के नक्शे तालीम के नक्शे, निसाब तालीम, निजाम तालीम, उसको तरतीब देते मिलते हैं। तो बड़ी फिक्रमंदी की बात है। आप हजरात
اسی طریقے سے مولانا نام صاحب یہ بھی بڑے نظام کے ساتھ کام کر رہے ہیں، مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ نیرانہ یہ گاؤں، اللہ کا شکر ہے اس میں کئی ادارے چل رہے ہیں، اللہ ان مدرسوں کو قبول فرمائے۔ بہرحال کیونکہ اس وقت جلسوں کا زمانہ ہے اور مجھے بھی کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے، یقین کرو آپ لوگ، میرا تو آپریشن بھی ہوا ہے پتھے کا، تو اس لیے بولتے ہوئے یہاں پر تکلیف بھی ہوتی، لیکن کئی جگہ ان مدرسوں میں جانا جو ہوتا ہے، کیونکہ مدرسے یہ اللہ کے نبی کے گھر ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو بیٹھنے میں ثواب مل رہا ہے، یہ مدرسہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے میرے محترم مدرسہ جو ہے اللہ کے نبی کا گھر ہے، جس مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت عمل مائی، اللہ کے نبی نے اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ وہیں پر قائم فرمائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت مل جانے کے بعد 13 سال تک مکہ معظمہ میں اسلام کی تعلیم و تبلیغ میں مصروف رہے، لیکن جس وقت مکے کے باشندوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور وہاں پر اسلام کی دوسری درسگاہ قائم فرمائی۔ سب سے پہلے 2 صحابہ کو لے کر بیٹھے، 2 سے 5 ہوئے، 70 ہوئے، اور پھر میرے محترم تعداد بڑھتی چلی گئی اور وہ ملک در ملک پہنچے، اور پھر شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تم جتنا تراشو گے یوم سوا ہوگا، تم جتنا تراشو گے یوم سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، دھونے سے نہ چھوٹے گا یہ خون ہمارا ہے، تلواروں کے سائے میں حسن زیادہ ہوگا، مظلوم تو ہے لیکن مجبور نہیں ہے ہم ضد پر آئیں ایک حشر بپا ہوگا۔ آج یہ مدارس اسلامیہ ہمارے ملک میں 2,60,000 مدرسے، جن سے 25,000 حافظ، 10,000 مولوی، 3,000 قاری، 1,500 مفتی فارغ ہوتے ہیں۔ یہ مدرسوں کا نظام مسلمانوں کے عام چندوں پر چلتا ہے، اور بھائی یہ جلسے کے 2 مقصد ہیں، ایک تو یہ ہمارے کانوں کے اندر دین کی باتیں پڑ جائیں، اور ایک یہ کہ مدرسے کا کچھ مالی تعاون ہو جائے۔ اس لیے ہمیں موقعوں پر مدرسوں کا خیال رکھنا چاہیے، جو بھی کسی کو ہو سکے، اگر ایک